Hello everyone, this is Himangi, a class 12th pass out who got decent marks in her exams, and here are the marks: 97 in accounts, 96 in business studies, and 86 in economics and stats. And make sure that you stay tuned till the end because I'm going to reveal why I messed up in these two subjects. So I am clearly not one of those people who like scores in like hundreds and like 99s. I'm not one of them, but I definitely do have a lot of friends who have scored 99s in their exams, hundreds also. So I talked to a lot of them, and this is a combined video of all the tips and all the tricks that can help you to ace your board exam. So before we get started with today's video, I think it makes sense for me to talk about the resources, tools, techniques and like the materials that you need to ace your exams in class 12. And I think you can find all of them in just one platform that is known as PhysicsWallah. So I know that you are from class 12th or class 11th and you are going to in future prepare for CA, CFA, research analyst, financial analyst, etc. And it is very important for you to have a strong foundation of the core principles of commerce, like accounts and journals and ledgers and everything. एंड यहाँ पे आपकी हेल्प करता है कॉमर्स वाला. सो कॉमर्स वाला ने रिसेंटली नए बैचेस स्टार्ट किया फॉर क्लास 11th एंड 12th, जिसे ज्वाइन करके आप भी अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, दीज आर अवेलेबल फॉर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. और इन बैचेस के स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. कुछ ने 99% स्कोर किए, 300 से ज्यादा पीपल्स हैव स्कोर्ड 95% इन देयर एग्जाम्स. अगर आप क्लास 11th में हो देन कॉमर्स वाला हैज आरएम 2.0 2025 बैच टू ऑफर. इन बैचेस में आपको एनरोल करके मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स एंड नोट्स, डीपीपीज एंड टेस्ट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डिंग लेक्चर्स. एंड इन सबके साथ साथ डीपीपीज एंड प्रैक्टिस पेपर्स आर द चेरी ऑन द टॉप. And if you are in class 12, then Commerce Wala has Cautelia 2.0 2025 batch to offer. इन बैचेस में भी आपको मिलता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर, डीपीपीज, नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड अ लॉट मोर थिंग्स. क्लास 11th एंड क्लास 12th की रेगुलर बैचेस का प्राइस है 12,000, बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू दैट यू कैन गेट इट फॉर जस्ट 4,500 रुपीज. एंड ऑल्सो क्लास 11th एंड क्लास 12th के प्रो बैचेस विच आर फॉर 18,000 रुपीज, यू कैन जस्ट गेट देम फॉर 7,499. एंड इतना तो इंडिविजुअल कोचेस एक महीने का चार्ज करते हैं. सम ऑफ द फीचर दैट आई लव अबाउट दीज बैचेस इज दैट यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग बैचेस. You will also get hard copy of all the books and all the subjects. You are also going to get 24/7 doubt solving, and this is a no-brainer deal for you. So just go ahead and enroll yourself for these batches. And also I have another good news for you that if you use my coupon code which is HEMA200, then you can also get extra 200 rupees off. Batches का link नीचे description में है. Now let's get started with the video, and I think we should start from absolute basic, like शुरू से शुरू करते हैं. अभी August चल रहा है and I think your midterms must be coming. Midterms आ रहे होंगे, right? I'm going to give you 3 tips which can help you to ace your midterms. Number 1, just please complete the syllabus on time. Do not do it the night before the exam. अभी अगर आपके लेट्स से 4 चैप्टर्स आने वाला है, 6 चैप्टर्स आने वाला है इन मिड टर्म्स, दैन अभी तक आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए. दैन ओनली यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ योर रिविजन फेज. एंड अगर कंप्लीट नहीं हुआ है देन यू कैन जस्ट हैव अ जिस्ट ऑफ इट, लाइक समरी वीडियोज़ देख लो या फिर उसके फॉर्मूला याद कर लो. दैट इज़ वॉट यू कैन डू. सेकेंड टिप इज़ दैट गिव एज मैनी टेस्ट एज यू कैन. आपके ट्यूशन में, आपके स्कूल में जो भी टेस्ट हो रही है, डू नॉट मिस देम फॉर द सेक ऑफ द प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के लिए अपनी टेस्ट को मिस मत करो, सारे टेस्ट दो, उससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी होगी. सो दैट इज़ वाई यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ द टेस्ट. आई ऑलमोस्ट लाइक गिव 100 टेस्ट थ्रू आउट माई ईयर. मैंने ट्यूशन में 100 से भी ज़्यादा टेस्ट दी होगी. एंड आई विल शो यू दिस बिग बंडल ऑफ द टेस्ट पेपर्स दैट आई हैव. सो ये एग्ज़ाम देना बहुत ही हेल्प करता है. आपको पेपर प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको रिविजन अच्छा होगा, आपको पता चलेगा क्या वीक टॉपिक है आपका एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपको कहाँ पे फोकस करना है. सो या डू नॉट मिस टेस्ट एग्ज़ाम एंड प्लीज़ डू नॉट डू दैट. And third thing is not a tip, but it is an advice to you that it is okay if your midterms do not go well or as how you expected them to go. मेरे midterms were pathetic, I swear it, they were just so pathetic. मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो मतलब आया ही नहीं, और उससे बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए थे मेरे. बट इट इज़ ओके, यू आर गेटिंग फेमिलियर विद द कोर्स, यू आर गेटिंग फेमिलियर विद द new school if you are in, if you are getting familiar with the syllabus and everything. So go slow, it is okay. अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, you do not have to be demotivated by them, but you have to learn from the mistakes that you do. आपने जो भी मिस्टेक की है उसको एनालाइज करो, अच्छे से टाइम लेके जाओ and see the papers, write down all the mistakes that you did.
and then you can improve them in the coming exams, like pre boards में आप उसको improve करो, and then boards में तो you have to give your 100%, right? Alright, so now we are going to go subject wise. So subject wise जैसे कि अकाउंट, स्टैट्स, BST, इकोनॉमिक, मैं इन सब में आपको इंडिविजुअल एडवाइजेस देने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ अकाउंट. So accounts was one of my weakest subject, but at the end of the year it became my favorite subject and मैंने 97 score किए थे. And I'll tell you how I made the weakest subject of mine to my most strongest and my strength. So 3 things which helped me to get 97 out of 100 in accounts. Number 1, again, giving as many papers, as many exams, as many tests as you can, because practice really makes a man perfect, right? देखो accounts में क्या होता है, you have to master 3 things. Number 1, which is the most important thing, टाइम मैनेजमेंट. आपको कितना भी आता है, लेकिन अगर आपने अपने एग्ज़ाम में सारा चीज़ अच्छे से टाइम पे ख़त्म नहीं किया, इट विल नॉट मैटर. इट्स अ वेरी सैड रियलिटी, आई नो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहले मास्टर करना है. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट प्रेजेंटेशन. आपको पहले तो टेबल बनाना आना चाहिए. जो भी आप लिख रहे हो वो अच्छे से टेबल में रिप्रेजेंट करो. ऐसा नहीं कि नंबर 1 डाला एंड देन यू कैन जस्ट राइट डाउन योर एंट्रीज. यू कैन नॉट डू दैट. यू हैव टू मेक लाइक अ प्रॉपर टेबल एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट. अभी आप जैसे जो भी होमवर्क करे हो ना, सो डोंट जस्ट राइट 1 एंड डू द एंट्री एंड देन राइट द numbers and everything. You have to make proper table, proper ledger, proper journals, and then only you have to do your homework, you have to do your practice papers and everything. So do not compromise on your practice. You have to practice them really well, and that's how you can get better at your time management as well. And time management के साथ साथ paper presentation को भी आपको अच्छा करना है. अगर आपको paper presentation सीखना है, then I made a video with my tuition sir. मेरे सर को 14-15 years का experience है in the commerce field, and वो 14-15 years से पढ़ा रहे हैं. So it is a really informative video to watch. ये वाला वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूंगी, आप वो देखना. आपको पता चलेगा कि टॉपर कैसे अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली अकाउंट्स एंड स्टेट्स का. सो प्लीज़ डू चेक दैट आउट. इट विल रियली हेल्प यू. सो या 1, you have to get good at time management. Number 2, presenting your paper. You know what to write, but you don't know how to write. That will not work. You have to learn how to write as well. And the last thing is, obviously you should know the concept. You should know all the entries and क्या कहाँ पे जाएगा. Second thing which really helped me was understanding the concepts logically. Like you should know कि why closing balance यहाँ पे जाता है और यहाँ पे नहीं जाता है. For example, अभी तो मैंने बहुत दिनों से accounts पढ़ा नहीं है, so I just forgot everything. But one thing that I remember is opening balance of trial balance कहाँ पे जाएगा, trading account, right? So you have to understand why it is there and not in the P&L account. You have to understand that logically. Ask as many doubts as you can, and that is how you will get better at it, because you can forget like the application but you will not forget the concept. It will really help you. अगर आप सब चीज़ logically, सब चीज़ conceptualize करके समझोगे, it will really help you. Third thing which helped me was doing all the illustration. Now illustrations are underrated. They are very underrated. You have to do all the illustration. like exercise क्या होता है, पीछे जो क्वेश्चन होता है वो तो सर आपको लेक्चर में करवा देता है, बट इलस्ट्रेशन आर द थिंग जो होमवर्क में देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट डू दैट. एंड दिस वॉज द मिस्टेक विच आई मेड इन द बिगिनिंग. जो भी सर होमवर्क में इलस्ट्रेशन देते थे वो मैं कभी कभी करती थी, कभी कभी नहीं करती थी, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 महीने में मैंने सारे बुक के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट किए थे, ऐसे ही मेरे अच्छे मार्क्स आए थे. सो अभी तो बहुत जल्दी आपके लिए सारे इलस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दो. एक्सरसाइज सर ने जो भी क्लास में करवाई दैट इज़ गुड, बट इलस्ट्रेशन विल हेल्प यू. दे आर मेंट टू हेल्प यू टू सॉल्व द एग्जाम्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. आई मीन, सो जस्ट डू ऑल द इलस्ट्रेशन. एग्जाम्पल्स जो भी है वो अच्छे से करो, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन गेट बेटर एट. Now moving on to statistics, stats, like this was one of my favorite subject, but I just messed up. I messed up very badly. Like even when now I think of that exam, I have a big regret that why did I do that? You know, why didn't I put that much focus on the questions and on the theory, and I have made a lot of mistakes. So that is what I'm going to tell you. And one thing जिसमें मेरी गलती नहीं है is that कि स्टेट्स में छुट्टी ही नहीं थी. मतलब आई हैड 3 कंसेक्यूटिव एग्ज़ाम्स, एंड एसपी का पेपर मैं दे के आई थी 7 बजे, एंड देन 7 बजे से नेक्स्ट डे 3 बजे मेरी स्टेट्स की एग्ज़ाम थी. सो जीएसबी बोर्ड जस्ट एक्सपेक्ट अस टू जस्ट
prepare for the exam also, have food also, get ready for the next exam also, and then also sleep भी, revision भी करो, सब कुछ तुमको सिर्फ 14-15 घंटे में करना है, and that is what you have to do. You have no other option, which was very unfair. Like they should have gave us 1 day का gap so that we can prepare for other exams. Yeah, we cannot do everything at once. So yeah, that was not my mistake, but still I think अगर मुझे एक दिन का break मिला होता, एक दिन का time मिला होता to revise everything, I could have done better. So first thing which I would like to tell you is that make formula sheets. Stats is just like maths का ही part है, so you have to make formula sheet for every single chapter. You know, अगर आपने मेरे पहले के vlogs वगैरह देखे होंगे, I had this big chart paper जिसके अंदर सारे formulas थे, and मैं हर बार मिड टर्म में भी मैं उसको रिवाइज करके गई थी, प्री बोर्ड्स में भी मैंने उसको रिवाइज किया था, एंड बोर्ड एग्जाम के पहले भी आई हैड रिवाइज दैट. सो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आपने एक पूरा चार्ट पेपर ले लो, उसके अंदर राइट डाउन टॉपिक्स एंड और एल्स यू कैन राइट डाउन द चैप्टर्स, एंड देन उसके अंदर टॉपिक लिखो, एंड उसके बाद उसके अंदर के सारे फॉर्मूला लिखो. बिकॉज स्टैट्स में ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में एक टॉपिक में एक ही फॉर्मूला है, एक टॉपिक के 4-5 डिफरेंट फार्मूलाज है, 4-5 डिफरेंट वेज है जैसे आप एक क्वेश्चन को कर सकते हो. सो यू शुड हैव लाइक अ व्यू. आप उसको हर रोज़ सुबह देखोगे, हर रोज़ जब भी आप पढ़ रहे हो, सो यू कैन हैव व्यू एट इट, एंड वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठता जाएगा. सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू. सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू से टू यू ऑल इज मेक योर थियरी डैम स्ट्रॉन्ग. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी थियरी को. लाइक यू नो, स्टैट्स को हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ओनली, बट इट ऑल्सो हैज़ थियरी. लाइक हमारे एग्जाम में क्या हुआ था, सेक्शन सी पूरा थियरी आ गया, एंड वी ऑल वर लुकिंग एट ईच अदर कि यार ये क्या है. आई मीन सेक्शन सी में वी वर प्रिपेयर्ड फॉर स्मॉल सम्स एंड जो भी जल्दी जल्दी हो जाए, बट इट वॉज ऑल थियरी. डेफिनेशंस आई थी, देन यू नो अजम्पशन वर देयर, लिमिटेशंस वर देयर. सो वी ऑल वर लाइक mind struck, and I had really prepared my theory well, which helped me. section C बहुत ही अच्छा गया था मेरा because मैंने theory को बहुत ही अच्छे से किया था. So whenever you are starting off with a new chapter, just उसकी theory सबसे पहले समझ लो, उससे आपको practical you know sums में भी help होगा. So you have to make your theory also very strong. That will really help you. Last tip, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करो. अगर आपको कैलकुलेटर्स नहीं प्रोवाइड करते देन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. सब कुछ आता है, कैसे करते हैं वो भी आता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन में एक नंबर की भी मिस्टेक हो गई देन योर एंटायर सम इज़ रॉन्ग. एंड दिस थिंग आई डिड इवन व्हेन आई हैड अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर के साथ भी मैंने कुछ तो ऐसी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरे 2 5 मार्कर गलत हो गए. एंड दिस टेक्स मी टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ pay 10,000% focus on the sums that you are doing during the exam. During the exam, do not look at anything else, just focus on that one piece of paper and just you know do everything, do anything, but do not look anywhere else. That will distract you, and that is not what you want in the exam. Just focus on your paper, do everything that you can to make that paper the best paper of your life. And like, I didn't get distracted, but I don't know what was wrong with me. I was so confident. I think that overconfidence killed me. That overconfidence of knowing the answer, knowing the method killed me. I made many silly mistakes. I made many silly calculations in the exam, and that is why I messed up in my stats exam. Otherwise, I know जितना easy paper था, जितनी अच्छी मेरी preparation थी, I could have easily scored 93, 95 at least. Moving on to the next subject, which is economics. So economics also was a blunder. It was messed up. Economics was again a very strengthful subject of mine. मैंने बहुत ही अच्छे से economics की प्रिपरेशन की थी. कुछ सब्जेक्ट्स लाइक यू नो स्टैट्स और अकाउंट्स, इन दोनों में पूरे साल मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए थे उसमें मेरे 100 आए थे, 95 आए थे, उससे तो कम आए नहीं थे. लास्ट के महीने में आई न्यू कि मेरी स्टैट्स और इकोनॉमिक्स सबसे अच्छी जाने वाली है, बट दे बोथ वर ब्लंडर. मतलब आई थिंक दैट इज़ वॉट यू शुड अवॉइड. लाइक ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वॉट यू शुड अवॉइड. मेरे दोनों सब्जेक्ट में लास्ट के 1 मंथ में जितने भी एग्जाम दी थी, आई थिंक आई गिव लाइक 20-50 एग्जाम्स, सब में 90 अबव. एंड जो मेन एग्जाम थी उसके अंदर ही 86 आ गए, दोनों के सेम ही आए. वाओ. सो या इकोनॉमिक्स में व्हाट मिस्टेक आई डिड वाज दैट मैंने लास्ट सेक्शन से स्टार्ट किया, विच वाज माय यू नो स्ट्रैटेजी. मैं लास्ट सेक्शन से ही स्टार्ट करती हूँ एग्ज़ाम लिखना, बट
मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लिए जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, बहुत मतलब बहुत अच्छे से। वो मेरे मिड टर्म में भी आए थे, मेरे प्री बोर्ड में भी आए थे, मेरे एग्जाम्स लाइक ट्यूशन के एग्जाम्स में भी आए थे, एंड वो बोर्ड एग्जाम में भी आ गए। सो यू कैन गेट हाउ हैप्पी एंड एक्साइटेड आई वॉज टू राइट दैट आंसर, राइट? एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दैट आंसर, I forgot the points, I forgot what I had to write, and then मैं उसको याद करते गई, and I that thought of mind कि ये आंसर तो मुझे आता है तो मुझे अच्छे से लिखना ही पड़ेगा, that was a big blunder। मैं उस आंसर को 5 मार्कर में मैंने 10 मिनट लगा दिए, which was जस्ट स्टूपिड ऑफ माइंड। सो मैंने वो 10 मिनट उसमें वेस्ट कर दिया, एंड फिर मैंने उस आंसर को आधा ही लिखा। आफ्टर दैट आई completed my section E in just 1.5 hour, which is too much। मैंने ट्यूशन के एग्ज़ाम में 1 hour में सेक्शन E को कंप्लीट किया था, एंड एक्चुअल बोर्ड एग्जाम मुझे आधा घंटा ज़्यादा लगा था, जिसकी वजह से जो भी आंसर मुझे और भी अच्छे से लिखने चाहिए थे वो मैंने इतने अच्छे से नहीं लिखे। प्रेजेंटेशन वॉज वेरी बैड, एंड पॉइंट्स भी अच्छे से आते थे। लाइक इफ़ यू टेल मी कि यू हैव 15 more minutes to write that same paper, आई कुड हैव ईजिली स्कोर्ड 90+, बिकॉज पूरा पेपर अच्छे से आता, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की भूल हो गई थी। सो यार, दिस इज़ ऑल्सो वन मिस्टेक विच आई मेड, एंड यू शुड लर्न फ्रॉम इट कि प्रेजेंटेशन अच्छे से रखो, जितना पूछा है उतना ही लिखो। इट्स ओके अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसको सॉल्व करने मत बैठो, बिकॉज आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको और भी अच्छे से करने की ज़रूरत है। सो इको में फर्स्ट टिप ऑफ माइंड इज़ मेक नोट्स। मैं ऐसे आपको डिटेल एस्थेटिक नोट्स बनाने की नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये ऐसे नोट्स बनाए थे, और ये इसको मैं नोट्स नहीं बोलती, इनको मैं फ्लो चार्ट्स बोलती हूँ। दीज आर लाइक टॉपिक्स, टॉपिक के सब टॉपिक के मेन जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर का देयर इज़ कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर के सारे टॉपिक मैंने लिख दिए, एंड सारे फिगर्स लिख दिए। फिगर्स, नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लाने, यू शुड नो द फिगर्स। सो मैंने सारे मैंने रट लिया था, सारे फिगर्स को अच्छे से रट लिया था। सो दैट रियली हेल्प मी। एंड सेकेंड टिप इज दैट again do a lot of paper practice। I cannot elaborate this much because मैंने जितने पेपर्स दिए हैं ना, ये जो भी मार्क्स आए मेरे पेपर प्रैक्टिस की वजह से, एंड थैंक्स टू माई ट्यूशन। हर रोज़ हर दूसरे दिन टेस्ट होती थी, जिसकी वजह से वी हैव टू गिव द टेस्ट, बिकॉज हमारे ट्यूशन में कैसा था कि अगर टेस्ट नहीं दो तो मम्मी पापा को कॉल जाएगा, एंड माई मम्मी पापा डोंट वांट मी टू नॉट गिव द एग्जाम्स, दैट इज़ वाई आई हैड टू गो एंड गिव द एग्जाम्स। एंड इतनी सारी एग्जाम्स दी कि कुछ एग्जाम के पहले तो रिविजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इन द लास्ट मंथ एग्जाम्स के पहले आई डिड नॉट नीड टू डू लाइक एनी काइंड ऑफ रिविजन। सो दे के रिविजन नहीं होता था, रिकॉल होता था, जो भी आता था लिख दिया, सो वो रिकॉल हो गया अच्छे से, और भी मेमोरी स्ट्रेंथन अप हो गई। एंड देन नेक्स्ट हमारा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ। मैम गेव अस फीडबैक्स के क्यों ऐसा है और कैसे ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि टाइम भी बचेगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे। सो दैट वाज रियली हेल्पफुल। अगर आपका ट्यूशन नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। गिव मॉक टेस्ट, घर पे बैठ के एग्जाम लिखो, स्कूल जाओ, स्कूल की टीचर से एक बार रिक्वेस्ट करो कि चेक करके दे दो, या फिर जस्ट बता दो कि कैसे मैं इसको बेटर कर सकती हूँ। एंड लास्ट टिप इज़ दैट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। आपको पता है ऐसी मीम है कि यू जस्ट टेल मी द टॉपिक, बाकी का मैं लिख लूँगा। दैट इज़ एक्चुअली लाइक इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको पता है कि लेट्स से अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, अंदर का नहीं पढ़ेगा वो टीचर, बिकॉज उसके पास अभी 100 और पेपर चेक करने के लिए। आपने अनएम्प्लॉयमेंट लिख दिया, 4-5 लाइन लिख दी, उसको लगेगा कि कुछ तो लिखा है, मतलब कुछ तो आता है, ऊपर से पढ़ लेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट हैविंग अ जॉब। आपको इतना तो पता ही होगा। सो या टॉपिक अगर आपको याद है, देन यू कैन राइट ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। सो नाउ गोइंग ऑन टू द लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ BST, OCM, BA, जो भी आपको, हम इसको BA बोलते थे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत लोग OCM बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बहुत लोग बिजनेस स्टडीज़ बोलते हैं। सो या टॉकिंग अबाउट BA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही अच्छा पेपर गया था मेरा। लाइक ये पेपर ऐसा था ना कि जिसमें सेटिस्फैक्शन हुआ था एट दी एंड कि ये पेपर बहुत ही अच्छा गया। लास्ट में टाइम भी बचा था, लास्ट में आई कुड सी द पेपर कि मैंने कैसा लिखा है। टाइम भी था कि मैं अंदर ऐसे अंडरलाइन कर लूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह कर लूँ, वो सब भी टाइम बचा था। तो दिस वॉज अ रियली गुड पेपर ऑफ माइंड। सो BA एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर यू शुड नो व्हाट आर द
कंटेंट क्या है उसके अंदर का, कंटेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें प्लानिंग की, सो प्लानिंग के अंदर देर आर डिफरेंट टॉपिक्स, सो वी कैन से दे आर डिफरेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स आर द बेटर वर्ड टू से। सो प्लानिंग के अंदर दे आर डिफरेंट पॉइंट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स। अंदर आप कुछ भी लिख लो, दैट विल not matter that much. I won't say it doesn't matter, it won't matter that much. Why? Because sir or the supervisor, I mean the examiner who is checking the paper has लॉट मोर पेपर्स टू चेक। सो अगर आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया और अगर आपने कुछ भी अंदर अंदर लिखा है ना, वो सुपरवाइज़र आई मीन वो एग्जामिनर ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा एंड देन ही वुड मूव ऑन। सो yeah, you should know the pointers more than you know the content. So content आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, अच्छे से समझो। जब भी मैम समझा रही है सो अंडरस्टैंड इट वेल बट डोंट मग, उसको रटो मत, उसको सिर्फ नो समझ लो। एंड रटना क्या है, आपको पॉइंटर्स को रटना है। सेकेंड, you know, if you have a piece of paper or anything, just write this thing down, okay, that you should learn how to make one sentence into 3 sentences. You know, when I say I have this phone, I should know how I can make a paragraph out of it. I have this phone, this is a white phone, I have a nice, you know, wallpaper, I have a nice cover, I have a lot of apps in this. ऐसे मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपको पता है कि एक सेंटेंस को 3 सेंटेंस कैसे बनाना है, देन आपके अच्छे से ईजिली लाइक हंसते हंसते आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज यू नो हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम। बीए में आपको पॉइंटर्स याद है, देन सब कुछ अच्छा है। आप अंदर कुछ भी लिख लो, एक सेंटेंस याद आ रहा है उसका 4 सेंटेंस बना दो, दैट इज़ ऑल, that is what you have to do. And one hack that I would like to tell you all is that make acronyms. Acronyms क्या होता है पता है? So in the first chapter only we had this, you know, kind of a flow chart कि what we study in the entire book is planning, organizing, POS, staffing, D, directing, and C, controlling. Yeah, so this was the entire, you know, management system, that POSDC मतलब planning, organizing, staffing, directing and then controlling. This was the entire thing which I still remember. मतलब मेरी एग्ज़ाम को 5-6 महीना हो गया, मैंने कुछ भी बीए की बुक भी नहीं खोली, फिर भी मुझे क्यों याद है ये, बिकॉज दिस वॉज एन एक्रोनियम। जितने हो सके उतने एक्रोनियम बनाओ, पॉइंटर्स याद करना है तो एक्रोनियम बना दो। एक्रोनियम से अभी तक मुझे याद है, मतलब आप तो एग्जाम तक ईजिली याद रख पाओगे बिकॉज यू आर गोइंग टू रिवाइज इट, राइट। मैंने रिवाइज भी नहीं किया फिर भी मुझे POSDC क्यों याद है, बिकॉज मैंने उसका एक्रोनियम बनाया था। तो फॉर इको माई 3 टिप्स विल बी, फर्स्ट टिप विल बी कि सारे जो आंसर्स है उसमें यू गिव हेड पॉइंट्स. Second tip will be if your first focus should be on completing the paper, and then if time बचता है so you decorate it. And third tip will be that it would be preferable कि जो एक्सरसाइज में पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होता है वो छोड़ के तुम जो पूरा चैप्टर होता है स्टार्टिंग टू एंड वही पूरा स्कैन कर लो. एंड लाइक स्टार्टिंग से एंड तक ना तुम्हें आराम से जो पूरा पूरा चैप्टर होगा ना वो हो जाएगा लर्न. मतलब उसमें बेसिकली पूरा जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होता है वो कवर हो ही जाता है. सो इट्स बेटर कि आप पूरा जो चैप्टर है वही पूरा ऐसे लर्न कर लो. एंड ऑल्सो इन इको वन मोर थिंग इज़ दैट कि अभी से ही जो भी आपका डेट्स एंड फिगर्स और वॉट एवर जो नंबर्स होता है ना तो उसका आप लोग नोट्स बना लो ताकि फिर ना जब भी यू हैव टू रिवाइज सो you will go through it and कुछ miss ना हो जाए. And for BA again first point would be that पहले पूरा पेपर फिनिश कर लो and then at the end decorate it. Second thing will be again that scan the whole book, not just the पीछे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली बिकॉज फिर अंदर से जो भी क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन वॉट एवर सो उसके लिए हेल्प होगा. एंड थर्ड टिप विल बी के BA के जो भी सब शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना वो एंड जो भी सारी डेट्स होती है उनका पूरा सब चैप्टर्स का लिस्ट बना लो एंड सो यू कैन रिफर टू इट ईजिली एंड लर्न एवरीथिंग. दोनों में कॉमन एक मैं ये कहूँगी कि
जो भी कंसेप्ट है यू हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसे बहुत बार हेल्प हुई है कि अगर बीए या इको का पेपर हो ट्यूशन स्कूल कहीं पे भी, सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो ना तो आप आंसर खुद से भी बना सकते हो, और ऐसा मैंने बहुत एग्जाम्स में किया है. So yeah, these were all the tips that I would like to give you about commerce, about studies, about 12th, and I think and I hope that you liked it, you found this video helpful. Let me know in the comments what else, what are the other videos that you want me to make, what are the other videos that I should make on this channel. I know I am a little bit inactive, but I am going to get back soon, very soon. Okay, so yeah, that is about it for today's video. Thank you so much for watching it till here. I'm going to see you guys in my next video. Till then, stay happy, stay safe, and this is Himangi wishing you a great day.